हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो मैं अब पुनः जो है आपके सामने जो है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आया हूँ। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जहाँ पर हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो बॉडी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया था, दो या दो से अधिक बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया था। और उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात किया था, जहां की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डेल्टा ई इक्वल टू क्या मिलता है, हमें Q प्लस W मिलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड कैलकुलेशन ऑफ वर्क के बारे में जानेंगे। ओके, लेकिन मैं पहले एक ऐसा जो है ग्राफ बतलाता हूं जहां पर आप अलग अलग थर्मोडायनेमिक कौन कौन प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि एन आइडियल गैस 1 मोल ऑफ या एन आइडियल गैस, सपोज एन आइडियल गैस इज ब्रॉट in following changes from A to B, B to C, C to D, C to E. Okay, write the process involved in each step and determine the total work done from the change of A, B, C, A. Okay. So what is graph? Graph is here, first graph. I am taking graph is like our graph is P versus B graph. Okay. Now suppose that this is here. Okay, so it is point A, it is point B, it is point C again. So there is change A to B, B to C, C to A. Okay, now suppose here the condition is A, P1, V1, T1. Okay, again at B there is P1, V2, T1. Okay, suppose at C there is V2, V1, suppose V3, suppose here it is V3. Sorry, here there will be V2, V2 and T1. Okay. So in all these cases, first see T1 here temperature is constant. Temperature is constant. Okay. So there is no change in temperature from A to B, but there is change in the volume. P1 is constant, P1 is constant. So process A to B, what is A to B is isothermal, isobaric. What is isothermal? Isothermal and
isobaric. Why? Because there is no change in temperature as well as there is no change in the pressure. Understood? कोई problem? Now see, for B2C, the process is taking place at constant temperature. It is constant temperature. The process is isothermal as well as the volume is there is no change in the volume. You can notice here V2 is same. So the process is isothermal and isoporic. The process is isothermal as well as and isoporic. Understood? कोई problem? Now from C to A, when you are noticing C to A, there will be change in what? There will be change in the volume. B2 से B1 आ रहा है. फिर there is change in the pressure also. But which remains constant? The T remains constant. Temperature remains constant. इसलिए हमारा जो ये प्रोसेस है वह क्या है? C2A मेरा प्रोसेस क्या है? सिर्फ आइसोथर्मल है. ये कौन सा प्रोसेस है? C2A कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है. समझ में आ गए? अब हमें अगर दिखाना हो कि व्हाट इज वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. So it will be equal to area of triangle ABC. That is equal to 1/2 into AB into BC is equal to 1/2. AB is what? This is equal to V2 minus V1. And BC is what? That is equal to P2 P1 minus P2. Understood? So area under this curve will give you the work done. Any problem? So from the graph what we have seen that from A to B the process occurring are isothermal and isobaric. From B to C the process occurring are isothermal and isoporic because the temperature is remaining constant. Also the volume is remaining constant. यहाँ पर A to B में हमारा क्या चेंज हो रहा है? तो हमारा चेंज हो रहा है A to B में सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? V चेंज कर रहा है. जबकि B to C में मेरा क्या चेंज कर रहा है? P चेंज कर रहा है. एंड C to A में क्या चेंज कर रहा है? तो यहाँ P भी चेंज कर रहा है और यहाँ V भी चेंज कर रहा है. समझ गए? तो इस तरह से मेरा ये जो प्रोसेस हुआ वो A to B आइसोथर्मल हुआ, B to C आइसोथर्मल एंड A to B आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक हुआ, B to C आइसोथर्मल एंड आइसोपोरिक हुआ, C to A आइसोथर्मल सिर्फ हुआ. यहाँ पर और कोई चीज कांस्टेंट नहीं रह रहा है और कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं रह रहा है. समझ में आ गया बात? कोई प्रॉब्लम? दूसरा हमको निकालना था वर्क. तो वर्क क्या होता है? तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ लेते हैं. और ये जो वर्क हो गया तो एरिया अंडर द ग्राफ हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया. और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो दिस इज योर बेस, दिस इज इट्स हाइट. ओके, अंडरस्टूड. सो यू कैन राइट 1/2 v2 minus v1 into v1 minus v2. अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम. समझ में आ गया बात?
अब अगर इसी में पूछा जाए कि व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो अगर आपको इसमें अगर पूछ दे कि व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। क्या है, नोट क्या रखना है हमें, नोट में याद रखना है कि फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ग्राफ। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड ग्राफ के पास। अगला ग्राफ, दूसरा ग्राफ हमें क्या मिल सकता है? दूसरा ग्राफ हमें यह मिल सकता है, सेकेंड ग्राफ या अगेन पीवी ग्राफ। ओके, और एक ग्राफ हमारा एक इस तरह से आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये एक्सपेंशन हो रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ और एरिया अंडर द कर्व। यह मिलेगा हमें वर्क, और ये वर्क कैसे निकलेगा, ये वर्क कैसे मिलेगा? यह जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इसका जो है हमको कैसे वर्क निकालेंगे? प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल है। प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। ओके, और वर्क क्या हो जाएगा? तो वर्क ही हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है बात? ओके, तो वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन आर टी एल V2 बाई V1 और माइनस एन आर टी एल एन V1 बाई V2। ओके, यह हमारा एक वर्क हो गया। ठीक, दूसरा जो तीसरा जो ग्राफ हो सकता है वह इस तरह से हो सकता है हमारे पास। यह जो है, यह देखिए एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे हो सकता है। और क्या हो सकता है? यह पीवी ग्राफ ही है, पीवी ग्राफ है। यह भी मेरा क्या है? पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ है। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा एक इस तरह का। तो आप ये देखिए, एक क्लॉकवाइज वर्क, क्लॉकवाइज वर्क यह जो होता है नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज वर्क, एंटी क्लॉकवाइज वर्क यह क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यह क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हम इसका वर्क निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो वर्क निकालने के लिए हमको पता है कि वर्क इज इक्वल टू एरिया, है ना, ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। तो आप आर किसी तरह से इस तरह से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए ये मेरा आर निकलेगा, ये हम ये क्या किए? पॉइंट कर दिए। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास V1 है, ये मेरे पास V2 है, और ये मेरे पास P1 है, ये हमारे पास P2 है। तो आप इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या होगा? तो ये रेडियस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई 2 और इंटू दैट इज P2 माइनस P1 बाई 2। So you can calculate the work done in the clockwise और anti-clockwise। चूंकि ये clockwise है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये anti-clockwise होगा तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू सेम उसी तरह से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पाई इंटू क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा?
P2 माइनस P1 बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? कोई प्रॉब्लम? तो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द वर्क फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से। समझ गया ना? ग्राफ में दिया, ग्राफ दिया रहेगा, उससे आप क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, जैसे अगर आपके पास कहता है ना, कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। तो क्वेश्चंस क्या है आपके पास, सपोज एक दो ग्राफ और पहले बता देता हूँ, सॉरी 1 मिनट और रुकिए। अगर आपसे ये सिर्फ ग्राफ दिया हुआ रहे, सपोज यह ग्राफ दिया रहे आपके पास, ए है सिर्फ, अब बताइए इधर P है और इधर क्या है, B है, तो व्हाट इज द वर्क? तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया V1, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा V2, ओके। और ये क्या है, यहाँ पर P कांस्टेंट है, ये P एक्सटर्नल हो गया, ये P एक्सटर्नल, ओके। तो एरिया हो जाएगा इसका, समझ गए? तो एरिया क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू होगा V2 माइनस V1 इंटू P एक्सटर्नल, बिकॉज P इज द कांस्टेंट, ओके। सो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस, समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो है इरिवर्सिबल वर्क है। यह किस तरह का वर्क है, इरिवर्सिबल वर्क है, समझ गए? अंडरस्टूड? उसके बाद अगर मेरे पास यह ग्राफ हो, मान लीजिए दूसरा ग्राफ इस तरह का हो, अगर यह ग्राफ दिया हो, सपोज यह हमारा वॉल्यूम है और ये मेरा प्रेशर है, तो आप देख रहे हैं प्रेशर तो चेंज कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पर dB इक्वल टू 0 है, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dB, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि dB मेरा क्या है, 0। समझ गए? तो इस तरह से जो है अलग अलग ग्राफ दिए रहेंगे, और उनमें जो है आपको अलग अलग कंडीशन में ग्राफिकली वर्क को डिटरमाइन करना होगा। तो होप आप इन सारे ग्राफ को समझ चुके होंगे, है ना? एक और ग्राफ अगर आपको इस तरह से दिया हुआ हो, मान लीजिए कि नेक्स्ट ग्राफ अगर आपके पास है, अगेन इसको 1 2 कर देता हूँ, 1 2 3, अगर इस तरह का ग्राफ दिया हुआ हो तो फिर आप निकालेंगे। इसमें भी ये इस तरह का ग्राफ हो सकता है, इस तरह का ग्राफ हो सकता है, ओके। समझ गए? यहाँ पर भी क्या होगा, आप समझ सकते हैं, निकल जाएगा आपका, ये P हो गया और ये P हो गया, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। आप इसको निकाल लेंगे, एरिया अंडर द कर्व। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया बात? तो इस तरह से जो है हम लोग ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, वर्क डिटरमाइन करते हैं। समझ गए था? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ टोटल वर्क 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आए पॉजिटिव वर्क होगा और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गया ना? टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 0 निकलेगा। एनी प्रॉब्लम? समझ में आगे बात? कोई दिक्कत? चलिए, तो आज हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, समाप्त करते हैं।
बाकी अगले क्लास। थैंक यू।